Hello students, welcome to my channel. So our today's topic is related to class 9. Chapter is तुम कब जाओगे अतिथि. In this video you will get the Hindi and English explanation of this chapter. If you are new to my channel, so please subscribe it, so whenever the new video will become, so you will be first notified. Okay, so first I will give the summary of this chapter, and after that we will start the explanation in Hindi and English. This chapter is related to guests. जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो एक भगवान की तरह होते हैं, लेकिन वही गेस्ट जब 4-5 डेज से ज्यादा रहने लगते हैं तो हमें वो ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर बर्डन है. तो उसी स्टोरी को इस चैप्टर में बताया है. ओके, so in this chapter the author wants to say the guests are not always the god. Why? So we will read the chapter. Okay, so without the delay we will start it. इस पार्ट में लेखक कहना चाहते हैं कि अतिथि मीन्स गेस्ट जो हमेशा भगवान नहीं होते. वाई? क्योंकि लेखक के घर पर जो आया हुआ अतिथि था वो 4 दिन से ज्यादा रहने लग गया था. मतलब 4 डेज इज ओके. जब कोई गेस्ट 4 डेज से ज्यादा रहने लगता है तो ऐसा हमारे पर बर्डन सा फील होता है. 5वें दिन मीन्स ऑन 5th डे लेखक अपने मन में अतिथि से कहता है कि ये 5वें दिन भी अतिथि अगर नहीं गया तो शायद लेखक अपनी मर्यादा भूल जाएगा. इस पार्ट में मीन इन दिस लेसन you will understand what the problem he faces. Okay, so we will see the English explanation. In this lesson the author wants to say that guests are not always God. Why? Because the guest who has come to the author house is not living after the 4 days. So on the 5th day the author tells the guest in his mind, not directly on the face, in his mind, that if the guest does not leave even on the 5th day, then perhaps the author will forget his limit. So in this lesson, you will see how the author faced the problem. Okay, related this one movie is also here. I will add the clip. Okay, who already watched the movie. That student easily understand this chapter. Okay, so we'll start. लेखक अपने घर में आए अतिथि को अपने मन में संबोधित करते हुए कहता है कि आज अतिथि को लेखक के घर में आए हुए 4 दिन हो गए. मीन ऑलरेडी 4 डेज हो चुके हैं. अब लेखक के मन में यह प्रश्न बार बार आ रहा है. नाउ कंटिन्यूसली इन हिज माइंड वन क्वेश्चन इज अराइज व्हेन ही विल लीव. दैट्स व्हाई द चैप्टर नेम इज तुम कब जाओगे अतिथि, व्हेन यू विल लेफ्ट. लेखक अपने मन में अतिथि को कहता है, ही इज नॉट डायरेक्टली सेइंग ऑन द फेस, ही इज सेइंग ऑन हिज माइंड, कि वह जहां बैठे बिना संकोच के सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है. मीन्स वे ही सिटिंग ना, front of that there is one calendar. Why they mention the calendar? So that he can check the date. So the author, while addressing the guest in his mind, says that it has been 4 days now since the guest has come to the author's house, and the question that is coming to the author's mind again and again, when will you leave, when will you left from here, not directly on face, okay, in his mind. So when will you leave, guest? The author tells the guest in his mind that there is a calendar right in front of where you are sitting, where he is sitting and blowing the cigarette smoke without any agitation. Okay, I hope this chapter means what the chapter is we are talking about, that one part is clear to you. Okay, now लेखक कहता है कि पिछले 2 दिनों से वह अतिथि को कैलेंडर दिखाकर तारीखें बदल रहा था. मीन ही इज चेंजिंग द डेट. ऐसा लेखक ने इसलिए कहा क्योंकि लेखक अतिथि की सेवा करके थक गया था. मीन्स नाउ ही इज टायर्ड. पर चौथे दिन भी अतिथि के जाने की कोई संभावना नहीं लग रही थी. लेखक अपने मन में अतिथि को कहता है कि अब तुम लौट जाओ. मीन्स नाउ ही इज सेइंग इन हिज माइंड कि प्लीज रिटर्न फ्रॉम हियर.
तुम्हारे जाने के लिए उच्च समय अर्थात हाई टाइम बिल्कुल सही वक्त है। क्या उसे उसकी मातृभूमि नहीं पुकारती? We will see the explanation. The author says that for the last 2 days he has been changing the date by showing the calendar to the guest, means changing the date. The author has said this because he is tired of serving the guest. होता है ना कि जब 4-5 डेज कोई गेस्ट होता है, आप उनके साथ जाते हो तो पूरा हमारा रूटीन चेंज हो जाता है और आप टायर्ड हो जाते हो। तो समटाइम्स ऐसा हम लोग फील करते हैं, ओके? बट इवन ऑन द 4th डे देयर सीम टू बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ द गेस्ट इज लिविंग। So the author in his mind tells the guest that now you should return. This is the right time for you to go. Doesn't his motherland call him? Okay, now we will see further. Okay, now means क्या उसे उसके घर की मातृभूमि मीन्स घर जहां वो रहता है, क्या उसे उसके घर की याद नहीं आती है? लेखक अपने मन में ही अतिथि से कहता है कि उस दिन जब वह आया तो लेखक का हृदय न जाने किसी अनजान डर के धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं लेखक का बटुआ कापिया मीन्स व्हेन द गेस्ट इज अराइव, तो वो डर रहा था कि अभी उसके बहुत सारे एक्सपेंसेस होने वाले हैं। उसके बावजूद एक प्यार से भीगी हुई मुस्कुराहट के साथ लेखक ने अतिथि को गले लगाया और मेरी लेखक की पत्नी ने अतिथि को सादर नमस्ते की। मीन्स बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब गेस्ट आया तो जो ऑथर है उनको थोड़ा सा डर फियर हुआ कि अब उनके बहुत सारे एक्सपेंसेस होने वाले हैं। जबकि जब कोई आता है तो हम लेके जाते हैं ना, उनको बाहर ले जाते हैं, घुमाने लेके जाते हैं। तो और लेकिन इस चीज को ना सोचते हुए लेखक ने उन्हें एक हग किया अच्छे से और उनकी वाइफ ने भी उनको नमस्ते किया। So that is thus he not miss his home. The author tells the guest in his mind that the day when he came, the author's heart started beating due to some unknown fear. What was the fear now? Somewhere deep inside the writer's wallet trembled. Despite that, the writer hugged the guest. We are talking about when the guest is come, okay? With a smile full of love, and my writer's wife, means his wife, greeted the guest with the respect. Now, अतिथि को याद होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा उन्होंने मीठा भी बनाया था। Now what they cooked for them, for him, for the guest. Now we are describing that. इस सारे उत्साह और लगन के मूल में लेखक को एक उम्मीद थी। यह उम्मीद थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार अतिथि सत्कार की छाप अपने हृदय में लेकर अतिथि चला जाएगा। मीन्स अब यहाँ पे ये बोल रहे कि जब वो गेस्ट आया था तो उन्होंने उनको क्या-क्या खिलाया और ये सब सोच के शायद जो गेस्ट है वो नेक्स्ट डे चला जाएगा, लेकिन वो गेस्ट तो नेक्स्ट डे गया नहीं था, वो तो 5th डे तक नहीं गया था। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी अतिथि मुस्कान बनाए लेखक के घर में ही बने रहे। मीन्स 2nd डे की बात हो रही है। 2nd डे भी वो गेस्ट उनके घर में ही थे। The guest will remember that apart from the 2 vegetables and raita, means 2 vegetables, means 2 sabjiyan and 1 raita, देखो, he had also prepared a sweet. At the root of all this and dedication, the author had a hope. What was the hope? It was expected that the guest would leave by train the next day, carrying the impression of the wonderful hospitality in his heart. But this did not happen. So the guest stayed in the author house smiling even on the 2nd day. Now, लेखक अपने मन में ही अतिथि से कहता है कि उन्होंने अपने दुख को पी लिया और प्रसन्न बने रहे। मतलब उनको इतना गुस्सा आ रहा था कि when he leave, बट उन्होंने वो मतलब फेस पे दिखाया नहीं कि उनको गुस्सा आ रहा है या वो टायर्ड फील कर रहे हैं। ओके, लेखक ने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को अतिथि को सिनेमा दिखाया। अब 2nd डे की बात हो रही है, तो दिन में उन्होंने लंच प्रिपेयर किया, अच्छे से गेस्ट को खिलाया और नाइट के टाइम पे, रात्रि में नाइट के टाइम में उनको मूवी दिखाने लेकर गए। The author in his mind tells the guest that he drank his sorrow and remained happy. The author then gave the dignity of lunch to the afternoon meal and showed the guest a movie in the evening. Now,
इवनिंग होती है, मूवी दिखाने ले जाते हैं। नाउ लेखक के सत्कार का ये आखिरी छोर था। मीन्स अब लेखक जो ऑथर है वो इतना टायर्ड हो गया था कि अब वो सोचा था बस बहुत हो गया, अब मैं और ज्यादा कुछ नहीं करने वाला। जिससे आगे लेखक कभी किसी के लिए नहीं बढ़े। मीन्स इससे ज्यादा उन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं किया था इससे पहले। इसके तुरंत बाद लेखक को अनुमान था कि विदाई का वह प्रेम से ओतप्रोत भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब अतिथि विदा होता है और उसे स्टेशन तक छोड़ने जाता है। अब लेखक के माइंड में क्या चल रहा है कि 2 दिन से ज्यादा तो गेस्ट रहते नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए कि 2 दिन के बाद वो गेस्ट चला जाना चाहिए और हम उसका अच्छे से मतलब अच्छे से उनको सी ऑफ करके आए, स्टेशन तक छोड़ कर आए। तो वो सब वो सोच रहा होता है। This was the last point of hostility to the author, beyond which the author never went for anyone. मतलब इससे पहले उन्होंने कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया। Immediately after this, the author anticipated that the loving farewell moment should have come when the guest would leave and the author would go to see him off at the station. पर अतिथि ने ऐसा नहीं किया। अतिथि तो वहां से गया नहीं था, मतलब गेस्ट तो अभी भी उनके घर में ही था। वह लेखक के घर पर ही रहा। लेखक अपने मन में ही अतिथि से कहता है कि तीसरे दिन की सुबह, अब थर्ड डे आ रहा है, तीसरे दिन की सुबह मीन्स इन द मॉर्निंग टाइम, अतिथि ने लेखक से कहा कि वह धोबी को कपड़े देना चाहता है। अब धोबी कौन है यहाँ पे? धोबी मीन्स वॉशरमैन। ठीक है, अब वो वॉशरमैन को क्लोथ देना चाहता है। इसका मतलब क्यों क्लोथ दे रहा है? क्योंकि गेस्ट को और भी रहना है उनके यहाँ पे। ठीक है, बट द गेस्ट डिड नॉट डू सो, मतलब कि गेस्ट नहीं गया। He stayed at the author's house. The author tells the guest in his mind that on the morning of the third day, the guest told the author that he wanted to give the clothes to the washerman. लेखक अतिथि से कहता है कि कपड़ों को किसी लॉन्ड्री में दे देते हैं, इससे वे जल्दी धुल जाएंगे। मतलब वॉशरमैन को देने से अच्छा है यू विल गिव टू द लॉन्ड्री पर्सन। लेखक के मन में एक विश्वास पल रहा था कि शायद अतिथि को अब जल्दी जाना, मीन जो ऑथर है वो भी सोचा है कि ये वॉश करवा रहा है क्लोथ, तो शायद उनको जाना है, इसलिए वो अपने कपड़े वपड़े पैक करना चाहते हैं वॉश करवा के। लॉन्ड्री पर दिए हुए कपड़े धुलकर आ गए। अब कपड़े भी वापस आ गए और अतिथि अभी भी लेखक के घर पर था। कपड़े आ गए, ठीक है, वॉश होते हुए, वॉश करवा के उसके बाद भी जो लेखक का जो गेस्ट था, अतिथि था, वो अभी भी उनके घर पे ही रहा हुआ था। लेखक अपने मन में ही अतिथि से कहता है कि उसके भारी भरकम शरीर से तलवटे पड़ी हुई चादर बदली जा चुकी है, परंतु अभी भी अतिथि यही है। मतलब यहाँ पे वो क्या मतलब एक इडियम यूज किया गया है कि वो जहाँ पर बैठे रहते हैं उसमें तलवटे आ गई हैं और स्टिल वो है कि जाने का नाम नहीं ले रहा है। घर की जो हमने जो बेडशीट वगैरह हैं वो भी चेंज कर दी हैं, लेकिन जो गेस्ट है वो अभी भी उनके घर में ही रुका हुआ है। The author tells the guest that he should give the clothes to a laundry so that they get washed quickly. The author had a belief in his mind that perhaps the guest has to leave soon. The clothes given to the laundry got washed and the guest was still at the author's house. The author tells the guest in his mind. Again I am saying in his mind because it is not directly on the face. आप गेस्ट को डायरेक्टली फेस पे नहीं बोलते हो, आपके मन में ये सारी चीजें चलती है। In his mind that the wrinkled bed sheet has been changed from his heavy body, but the guest is still here. Okay, I hope till now it is clear. If you have any doubt, ask in the comment section. I will reply you there. Okay. अतिथि को देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब कहीं गायब हो गई थी। मतलब जब कोई गेस्ट आता है तो हम कितना खुश होते हैं, हैप्पी फील होते हैं, लेकिन जब वो ज्यादा दिन रहने लगता है तो वो जो हमारी स्माइल है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। अगेन दिस इज अ ईडियम। ओके, ठहाकों के रंगीन गुब्बारे, ठहाकों मतलब कि जब कोई आता है हम उसके साथ बैठते हैं, हंसते हैं। ओके, तो वो जितना हो रहा था स्टार्टिंग के 2 डेज में अब वो नहीं हो रहा है। The smile that used to burst out on seeing the guest has slowly faded and has now disappeared somewhere. The colorful balance of laughter which used to fly in the sky, okay, idiom, of his room till yesterday are not visible now.
परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति मीन पॉलिटिक्स, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर लेखक और अतिथि ने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उन लोगों ने सारे डिस्कशन कर लिए, सारे टॉपिक पे डिस्कशन हो गया, फैमिली के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में, जॉब के बारे में, फिल्म के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, रिलेटिव्स के बारे में, इधर उधर किसी का जो ट्रांसफर हो रहा है उनके बारे में, उनके जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं उनके बारे में, फैमिली प्लानिंग हो गई, लिटरेचर और इवन बहुत सारी ऐसी चीजों की थी जिनके बारे में वो लोग बात कर चुके थे, लेकिन अभी भी वो जाने का नाम नहीं ले रहे। तो फैमिली, चिल्ड्रन, जॉब, फिल्म, पॉलिटिक्स, रिलेशन, ट्रांसफर, old friend, family planning, inflation, literature, and even with a wink, the writer and the guest mention old girlfriend, and now there is silence. Why there is a silence? Because still he is at home. हृदय की सरलता अब धीरे धीरे बोरियत में बदल गई। अब क्या हो रहा है, वो बोर फील होना स्टार्ट हो गए। पर अतिथि जा ही नहीं रहा, लेकिन जो गेस्ट है वो तो वहीं पे रुके हुए हैं। लेखक के मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? Again and again in author's mind, same question is arrived कि when will you leave? कल लेखक की पत्नी ने धीरे से लेखक से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? अब नाउ लेखक वाइफ मतलब जो ऑथर की वाइफ है वो भी पूछ रही है कि ये कब तक यहाँ रुकने वाले हैं। लेखक ने कंधे उचकाकर कह दिया कि क्या कह सकता है, मतलब लेखक को भी मतलब ऑथर को भी तो नहीं पता ना कि वो कब तक उस यहाँ पे रहने। कंधे उचकाना मतलब शोल्डर्स को थोड़ा हाई करके और फिर बोलना कि पता नहीं कि कब तक रहने वाले हैं। लेखक की पत्नी ने अब गुस्से से कहा कि अब खिचड़ी बनाई जाएगी क्योंकि खाने में हल्की रहेगी, क्योंकि वो भी टायर्ड हो गई थी अलग अलग टाइप का खाना बनाना, स्वीट बनाना, 2 वेजिटेबल्स बनाना। अब वो किस पे ट्रांसफर हो गए, खिचड़ी पे ट्रांसफर हो गया, लाइट फूड जिसको हम बोलते हैं। The simplicities of the heart has now slowly turned into the world, but the guest is not leaving. The question is arising again and again in the author's mind, when will you go, guest? Yesterday, the author's wife had softly asked the author, because वो directly तो questions कर नहीं सकते from the guest, how long will he stay? The author shrugged his shoulders and said, what could he say? Because author also don't know when he will leave. So the author's wife now said angrily that she would make khichdi now because it would be light to eat. Now, लेखक ने भी हाँ कह दिया। लेखक also said okay make the खिचड़ी। लेखक अपने मन में कहता है कि अतिथि के सत्कार करने की उसकी क्षमता अब समाप्त हो चुके। लेखक in his mind saying कि now he will not entertain the guest more. डिनर से चले थे, means in the starting they are eating like different types of food. Now they come into the खिचड़ी कि मीन डिनर से चले थे और खिचड़ी पर आ गए हैं। अब भी अगर अतिथि नहीं जाता है तो हमें लेखक और उसकी पत्नी को उपवास तक जाना होगा। मीन if the guest will not go from here, so now we will have to do the fasting. लेखक चाहता है कि अतिथि अब चला जाए। Now he is tired. Now he literally want कि when the guest will be leave from here. The author also said yes, okay, make the khichdi. The author says to himself that his ability to hold the guest was now ending. They had left dinner and now they switched on to the khichdi. Even now, if the guest does not leave, then the author and his wife will have to do the fast. Will have to fast. The author wants the guest to leave now because he is too much tired now. Now, लेखक अपने मन में ही कहता है कि लेखक जानता है कि अतिथि को लेखक के घर में अच्छा लग रहा है, दूसरों के यहाँ अच्छा ही लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ पे रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। लेखक अपने मन में ही अतिथि से कहता है कि अपने खर्राटों से एक और रात गुंजित करने के बाद कल जो किरण अतिथि के बिस्तर पर आएगी वह अतिथि के लेखक के घर में आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। अच्छा, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि वो लोग क्या बोल रहे हैं
कि हम जब किसी और के घर में जाते हैं एज अ गेस्ट तो हम लोगों को अच्छा फील होता है, लेकिन सामने वाले के ऊपर एक बर्डन आ जाता है। जो दूसरों के आ जाता है उसको तो अच्छा फील ही होता है। अब ये बोल रहे हैं कि उम, अब जो है वो 5th डे आ चुका है। 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी मीन्स अब 5th डे अराइव होने वाला है, 5th डे आने वाला है। The author says to himself that the authors know that the guest is feeling good in the author's house because everyone feels good at the other people's places. If it was up to them, everyone would live at other places. But that is not possible. Author tells the guest in his mind that after spending another night snoring, the rain that will fall on the guest bed tomorrow will be the familiar ray of the fifth sun after the guest arrival in the author's house. Means basically he's telling कि it is now the 5th day. लेखक अतिथि से उम्मीद करता है कि सूर्य की किरणें जब चूमेंगी और अतिथि घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लेगा। लेखक अपने मन ही अतिथि से कहता है कि लेखक जानता है कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर लेखक भी मनुष्य है। मतलब कि वो अब सीरियसली चाहता है कि अब जो गेस्ट है, लेखक ऑथर है और अतिथि इज द गेस्ट। तो सीरियसली वो चाहता है कि अब जब 5th डे आए तो 5th डे वो जो गेस्ट है वो अब यहाँ से चला जाए। उसको पता है कि जो गेस्ट होता है वो एक तरीके से गॉड का ही रूप होता है, लेकिन जो सामने जो है ऑथर है, लेकिन वो तो एक ह्यूमन है ना, वो कब तक मतलब ऐसे ही किसी के लिए सेवा करता रहेगा, उनको सर्विसेज देता रहेगा। डेली डेली तो इतना फूड नहीं प्रिपेयर किया जा सकता, डेली उन्हें घुमाने नहीं ले जा सकते, तो वो सब चल रहा है। The author hoped that when the sun's rays kiss the guest, means when the sun rays touches the uh, face of the guest, he will take the respectable decision to return the home. The author tells the guest in his mind that the authors know that the guest is a god. He know that the guest is as a god. But after all, the author is also a human being. लेखक कोई अतिथि की तरह देवता नहीं है। ऑथर इज नॉट लाइक अ गॉड। लेखक कहता है कि एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते। देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं, लेकिन अतिथि को लौट जाने के लिए कहता है और कहता है कि इसी में अतिथि का देवत्व सुरक्षित रहेगा। लेखक अंत में दुखी होकर अतिथि से कहता है, उफ, तुम कब जाओगे? अतिथि मतलब अब 5th डे पे वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है ना ऑथर कि वो फाइनली बोल ही देता है गेस्ट को कि अब आप कब जाओगे। ओके, तो ऑथर इज नॉट अ गॉड लाइक अ गेस्ट। द ऑथर सेज दैट अ गॉड, मतलब यहाँ पे गॉड क्यों, व्हाई दे आर सेइंग द गॉड, बिकॉज guest is as a god. The author says that a god and a man do not stay together for a long time. The god returns after giving the darshan, after giving the blessing. The author asks the guest to return and says that in this, the divinity of the guest will remain same. In the end, the author sadly says to the guest, oh, when will you go, guest? Okay, that's why the chapter name is When Will You Go? Didi, tum kab jaoge? I hope this chapter is clear to you. If you have any doubt, ask in the comment section. I will ready to reply. I will ready to give the reply there. Okay. And still you are not subscribed my channel, subscribe it. So whenever the new video will be uploaded, so you will get it. Okay. And please like and comment my channel. Thank you for watching this video. We will see you in the next class. Bye bye.